ہے حجاب آتش دوزخ سے قربانی، ہے یہ مفہوم کلام مصطفیٰ لوگوں، دور جو خواہش سے ہے وحی خدا لوگوں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل نے آپ کے اس کے لیے معلومات کے لیے اور مختلف بارے میں مختلف معاملات کے حوالے سے اویئرنیس دینے کے لیے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی اچھے انداز میں مختلف سلسلے جو ہے وہ ڈیزائن کیے ہیں، اور کیا کیا گفتگو ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل تیاری کا سلسلہ ہے۔ آج جو موضوعات جو ہے وہ شامل رہیں گے اس میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو بھی بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مبارک انداز کیا تھا اور وہ عظیم واقعہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ہم سنتے ہیں، اس سے ہمیں سیکھنے کے کیا مدنی پھول ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ بھی بیان کریں گے۔ کیسی استقامت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور کیسا راضی بر رضائے الہی ہونا تھا، کس طرح شیطان کے مکر و فریب کو، شیطان کے ہیلوں بہانوں کو اپنے آپ سے دور کرنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے آپ کا کیسا مبارک انداز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس میں کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معاونت فرمائی، اور گویا کہ یوں کہیں کہ اپنے والد صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سارے مدنی پھول آج کے سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہنا ہے، اول تا آخر شامل رہنا ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ جیسے امیر سنت کی زیارت کر رہے ہیں، آپ تشریف فرما ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے، امیر سنت کی زیارت بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ عید مبارک بھی ظاہر سی باتیں کہیں گے، لیکن آج کے قربانی کے حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا آپ کوئی واقعہ ایسا دیکھتے ہیں جو رونما ہوا ہے، عبرت کے لیے آپ اس کو بیان کرنا چاہیں تو یہ بھی جو ہے وہ آپ کر سکیں گے۔ حضور ہم جب آ رہے تھے خزان مدینہ سے رستے میں، تو میں نے دیکھا کہ قربانی کا جانور جو ہے یہ ذبح ہو چکا ہے، اور وہ ابھی اپنے جو ہے وہ حرکت دے رہا ہے، اپنے پائے اس کے ہل رہے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کی کھال جو ہے وہ کافی ساری اتر چکی تھی، اور میں دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا مانا، یعنی وہ ہلا رہا ہے جانور اپنے اعضاء، مطلب وہ ہلا رہا ہے اور اس کی کھال جو ہے وہ اتر رہی ہے۔ ظلم ہے، یہ سارا گناہ یہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے اعضاء نہیں کاٹے جا سکتے، اس کو چھری ٹچ بھی نہ کرے، بہت ظلم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ بات کئی دفعہ مدنی چینل پر بیان کر چکے ہیں، اچھا ابلغ گورے صبح رسالے میں یہ بات لکھی جا چکی ہے، مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں بھی یہ بات بیان کی جاتی ہو رہی ہوگی، میرا گمان ہے، میں نے بھی کی ہے، لیکن اصل میں بابا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گوشت فروش ہیں یا جو جانور ذبح کرتے ہیں، ارے ان کو سمجھانے کا اتنا زیادہ فائدہ بظاہر نظر کم آتا ہے، اس میں جس کے جانور کٹ رہے ہیں نا اس کو شاید ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایسے سن رہے ہوں گے مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں کہ جن کے یہاں بھی ذبح ہونا باقی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جانور کاٹنے والے کے ہاتھ کو روک لیں کہ بھائی آپ اب رک جائیے۔ جب وہ چھری پھیر چکے نا، ان کے ہاتھ سے چھری لے لی ہے، وہ مانگے تب بھی نہ دی جائے، یہ اس کا حل ہے۔ اور وہ پھر کٹی ہوئی گردن میں ہاتھ ڈال کر پھر حسرت نکالتے ہیں، تو ان کو کٹی ہوئی گردن پر ہاتھ بھی نہ رکھنے دیا جائے۔ آپ اپنے اوپر غور کریں نا کہ آپ کو زخم لگ جائے تو کیا یوں آپ انگلی سے اس کو دبانا پسند کریں گے کھلے زخم میں؟ کبھی بھی آپ اس کو ٹچ کرنا پسند نہیں کریں گے کہ درد ہو، تو یہ بے زبان کس کو فریاد کرے گا؟ لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہی جانور اگر عذاب کے طور پر قبر میں مسلط کر دیا گیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ گوشت فروش تو یہ جو بھی کر رہا ہے، قصاب وہ غلطی کر رہا ہے، آخر جو کٹوا رہے جانور ان کو بھی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو اس کا ہاتھ روکے۔ یہ جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ یہ جانور قیامت کے روز یا قبر میں عذاب کے حوالے سے ڈرا رہا ہوں میں، اسی میں روایت نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس جانور آئے گا، اس عنوان کی طرف توجہ نہیں ہے نا کہ مطلب جانور سے کیا مطلب کہ ہم کو قیامت میں اور قبر و آخرت میں ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ جانور ہیں،
काटा ख़त्म हो गया। ये तस्वुरात दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तो देखने सुनने को मिलते हैं, मगर जनरली तौर पर इससे तस्वुरात उमूमन हमें मिलते नहीं है। अब जैसे कि ये जो कुछ मदनी फूल अमील सुन्नत ने अभी जैसे कि बयान फरमाए, तो इन मदनी फूलों को अगर हम थोड़ा सा लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें फ़ायदा होगा। क्या कहते लोग हैं? समझते हैं कि हम जो फील करते हैं हुजूर, एक बात की लोग समझते हैं शायद जानवरों को तकलीफ ही नहीं होती, इनको तकलीफ ही नहीं हो रही, बस जो कर रहा है वो कर रहा है। हाँ भी ठीक है, मामला अभी देर लगेगी, देर हो रही है, जल्दी काम जो है वो हो जाए, तो जल्दी उजलत भी एक होती है इसके अंदर। तो जानवर ज़िबा हो गया है और कितनी इसमें सादतमंदी की बात है। अल्लाह तबारक तआला अगर कबूल फरमाए तो अब उसका गोश्त भी बन ही जाना है और उसकी जो आपने उसके पकवान बनाने हैं वो भी बन ही जाने हैं। लेकिन अगर थोड़ा तवक्कुफ़ किया जाए और शरीयत मुताहरा के उसूल को और जो अमीर सुन्नत तरीक़ाकार बता रहे इसको फॉलो किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि अहसन अंदाज में सारे मामलात जो है वो सर अंजाम पा सकते हैं। नहीं, इसमें तिब्बी हवाले से भी अगर आप गौर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें फ़वाइद ही नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप जानवर को सही इसकी जो रगें काटनी है सही ज़बह कर लें, जी। ज़बह करने के बाद इसको आप छोड़ दें और इसको अपने तौर पर जो भी ये कटने के बाद जो ये तड़पता है फिर हाथ मारता है, इससे खून इसका जो सारा निकल रहा होता है, इस खून के निकल जाने के बाद जो ये मतलब इसका गोश्त जो है ना मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पे जो हमें बयान किया जाता है, जी, तिब्बी हवाले से अब इसका गोश्त मुज़िर सेहत नहीं रहता। नहीं रहा, सही। अंदर में मतलब इस तरह इसको सही मायनों में ना काट कर या इसके और जो इसकी शरई और फितरी तकाज़े हैं उसे पूरा ना करके हम वैसे ही अपनी सेहत के लिए भी तो नुकसानदेह का सबब ऐसी बनता बात, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ये भी देखा गया है हुजूर कि लोगों का बाज़ औक़ात वो जो खून निकलता है, जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं और ज़िबा के वक्त जो खून निकल रहा होता है, उस खून के हवाले से भी लोगों के अंदर ये जहन नहीं होता कि इस खून से जो है वो बचना चाहिए। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? यानी कुछ लोग उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं। जैसे एक जगह पर मुझे ये बात जानने को मिली कि अगर कोई पौधा है उसको कोई बीमारी जो है वो लगी हुई है, तो उस खून को अगर आप जमा करके उस पौधे की जड़ में जो है वो डाल दें तो उस पौधे की बीमारी जो है ये दूर हो जाएगी। उस खून से बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। खून जो दमे मसफूह कहते हैं जी, अमीर सुन्नत से इंशाल्लाह इस मामले में, तो भाई ये जो खून जो निकला है इसके हवाले से आप क्या फरमाते हैं? कल भी आपने इस मामले में मदनी फूल अता फरमाया था। ज़बह के वक्त जो खून निकलता है वो नापाक होता है, नहीं जैसे पेशाब नापाक है, बिल्कुल ये नापाक है और इससे तो अपने कपड़ों को हर चीज़ को बचाना पड़ेगा। अरे बाकायदा मतलब लोग इस बात पे शायद फ़ख्र करते होंगे कि हमारे कपड़े खून वाले हो गए, हमारे हाथ खून वाले हो गए, आप बचने का फरमा रहे हैं। यानी यूँ समझे कि ये ईद कुर्बान के अंदर जो है ना ये भी एक इसका एक हिस्सा है कि आपके कपड़े और आपके हाथ और आपके चप्पल, जैसे घर वाले देखें, मेले वाले देखें, अच्छा आपने कुर्बानी कर ली है, यानी कुर्बानी ज़ाहिर करने के लिए भी एक तरीका ये मतलब कि ये पिछले सालों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कि जना आपके कपड़ों पर और आपके हाथ पर यूँ कुर्बानी वो खून नज़र आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ इस वक्त बयान हो रही हैं यकीनन इसमें हमारे लिए ज़बरदस्त मालूमात है और ये आपको हाथों हाथ एक अच्छी सी पर्ची मिल गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरी तो खुशकिस्मती की, किस चीज़ की? खुश नसीबी की मिराज है। हाँ। मैं तो अल्फाज भी मतलब मैं क्या बोलूँ अब नहीं अल्फाज बोल ही रहे हैं बताएंगे आप। नहीं, किसी को पता ना चले इसलिए पर्ची फाड़ दी मैंने। क्या क्या बात है। लजपाल कदी मुंह मोड़ देनी जिदी बाप फड़ लेना छोड़ देने। यूँ नहीं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ अगर हुजूर ये नियत हो कि बंदे कपड़े खून आलूद हैं, लोग देखेंगे वाह भी बड़ा पला हुआ जानवर जनाब आज तो कुर्बान किया है, बड़ा महंगा जानवर कुर्बान किया, बड़ा खून निकला है, उसको ज़िबा करते अच्छा हो। आपकी गुफ्तगू भी थोड़ी सी जारी है। हम ये क्या कहते हैं हाजी अमीन है हमारे बाबुल मदीना मुशावरत के निगरान, सुभान इनके साथ भी कुछ इस्लामी भाई हैं, ये माशाअल्लाह हमारे मुख्तलिफ मकामात पर इनकी शिरकत भी है, तो वो भी सुना है कि हमारे साथ कुछ मनाजिर हैं इनके हैं, साथ हैं वो हमारे। अच्छा यूसुफ भाई हैं, माशाअल्लाह, मरहबा। अच्छा कॉल सेंटर से गालिबन जी, कॉल सेंटर। अच्छा आपको आवाज़ आ रही है हमारी यूसुफ भाई? जी जी मदीना। यूसुफ सलीम माशाअल्लाह जी, क्या बताएं, क्या बयान करेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत
اور निगरान शूरा और मंच पे मौजूद तमाम इस्लामी भाइयों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह करीम आज के दिन की बरकत अता फरमाए। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल अज़हा का दिन है और कुर्बानी का सिलसिला जारी है पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करने वाले कुर्बानी पेश कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले एक एक नेकी अता की जाती है। अल्लाह करीम आज के दिन की बरकतें अता कीजिए। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में मौजूद हैं और कॉल सेंटर का सिलसिला है। इस वक्त पाकिस्तान भर से अल्हम्दुलिल्लाह हमें कॉल्स मौसूल हो रही हैं और यहाँ पर मौजूद हमारे इस्लामी भाई जो हैं वो कॉल्स वसूल कर रहे हैं और वहाँ के मुतल्लिका ज़िम्मेदारान तक कॉल्स आने वाले एड्रेसेस वगैरह को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे इस्लामी भाइयों को भेज रहे हैं ताकि अच्छे ही अंदाज से उनकी खालें जो है वो दावत इस्लामी को मौसूल हो सके। और ये जो आपने कॉल सेंटर कायम किया हुआ है, इससे मुराद खाले जमा करने के हवाले से है कि शरई मसाइल बताने के हवाले से? नहीं, ये कॉल सेंटर खाले जमा करने के हवाले से। किसी का जानवर भाग जाए तो आपको कॉल करेगा तो आप उसकी मदद कर सकेंगे? उसके बारे में तो निगरान शूरा मौजूद है, अमीर अहले सुन्नत मौजूद है। हम बताएंगे कि जानवर भाग गया, इसके लिए ये करें। हम तो खाले जमा काम सौंपा जा रहा है। केक का जवाब भी नहीं है जी। हम तो यहाँ पर जो है वो पूरे पाकिस्तान से आने वाली जो आशिकान रसूल दावत इस्लामी के साथ ताउन करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में कुरान और सुन्नत का पैगाम आम करती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के 102 से ज़ायद शोबाजात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ ही देर में हमें रुकन शूरा हाजी अमीन अत्तारी साहब भी ज्वाइन करेंगे, बल्कि माशाल्लाह अमीर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारक है अच्छा, माशाअल्लाह हमारे निगरान भी आपके यहाँ मुआयना करने के लिए तशरीफ ला चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अमीन साहब यहाँ पर मकतब का विजिट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जी हाजी अमीन की लेने के लिए आए हैं। हाजी अमीन का मिलना और उनकी ज़ियारत हो रही है। आप, मेरा ख्याल है शायद आप हमें नहीं देख पा रहे, हम तो आपको देख पा रहे हैं। नहीं, हम आपको नहीं देख पा रहे, हम आपको नहीं। अरे आप नहीं देख पा रहे, हमारे तो अमीर सुन्नत है, आप नहीं देख पा रहे हमारे को। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कहा मुबारक, ईद मुबारक हो। अमीर सुन्नत भी आपको देख और सुन रहे हैं। माशाल्लाह, ईद मुबारक। बाबा की बारगाह में भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक बाबा। एक हदीस शरीफ सुनाओ। लब्बैक। हजरत सैयदना वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद के दिन मुलाकात के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो इस तरह कहा, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका, यानी अल्लाह ताला आपकी और मेरी नेकियां कबूल फरमाए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़रूर, क्यों नहीं, मफ़हूम मतलब कि बेशक, क्यों नहीं। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका, अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी नेकियां कबूल फरमाए। आमीन। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि ये यहाँ पर हो सकता है कि ईद की मुबारक का उस दौर में ये तरीक़ा साहबी ने, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसी को दोहरा दिया, दिलजोई फरमा दी अपने गुलाम की। हमारे यहाँ थोड़ा अपने आजकल ये है कि आपको दिल की अथाह गहराइयों से बहुत 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 ईद मुबारक। इसकी स्कैनिंग करनी पड़ेगी। अथाह अब गहराई। इधर उधर देख रहा है, गफलत में है, सेकी हुई बोटियों की खुशबुएं सूंघ रहा है। आज भाई कुर्बानी के जानवर तड़प रहा है, पड़ेगा, अथाह गहराई नापेगा कौन? सीधा सीधा शराफत से बोल रहे ईद मुबारक। शराबत नहीं, वो भी शराबत से बोल रहा होगा। नहीं, ये जब हम लोगों से ही लोग बोलते हैं ना, थोड़ा तकल्लुफ से अल्फाज बोलते हैं, इनको पता नहीं होता कि यहाँ स्कैनिंग मशीनें लगी हुई है। अल्लाह बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कॉल सेंटर में तो हमारे राब्ते का सिलसिला शुरू हो चुका और इलाकों में भी माशाल्लाह जब मैं अपने इलाके से निकला तो इस्लामी भाई जो है वो खाले जमा करना शुरू कर लिया है। और आज हमारी मसाजिद में जो 300 मरतबा अपने वजीफा
पढ़ने का जो तरगीब दिलाई सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा और मैंने नियत की थी कि आपके वालिदैन को भी मैं इसका इसाले सवाब करता जज़ाकल्लाह तक़ब्बल अल्लाह। हूँ। आमीन। इसकी फजीलत यह है कि फौत शुदा मुसलमानों को इसाले सवाब कर दे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 300 मरतबा, तो तमाम जिनको इसाले सवाब किया गया उनकी कब्रों में 1,000 अनवार दाखिल होंगे। अनवार ये नूर की जमा है, सुभान अल्लाह। और जब ये पढ़ने वाला फौत होगा तो इसकी कब्र में भी 1,000 अनवार दाखिल होंगे। तो ये जो तस्वीर है ना इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है, डिजिटल, हाँ, तो ये बड़ी हल्की फुल्की होती है। ये जेब में हो, जब ज़रूरत हो तो हाथ में आ जाए, तो कुछ ना कुछ हाथ में होगी ना तो बंदा पढ़ेगा, तो ये चलती रहेगी। ये पहले भी तरगीब दिलाई है, लेकिन अब काश इसका भी फैशन निकला है। तरह तरह के अंगूठी और अंगूठे चढ़ा लेते हैं, तो ये भी उंगली में अगर आ जाए तो क्या। अब कदरे देखा गया कईयों के हाथों में, देखा गया, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता, मुझे तो अभी तो किसी के हाथ में नहीं, अभी नहीं है, लेकिन यूँ देखी गई। किसी के हाथ में नहीं, जेब में वो ले ली उन्होंने। हाँ, कईयों की तो नीचे रही है। हाँ, ले ली होगी। अच्छा, ये अभी मदरी चैनल के नाजरीन, ये हमारे जो दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जो कॉल सेंटर है, इसमें अगर आप जहाँ कहीं भी हैं पाकिस्तान में, अगर आप कहीं अपनी कुर्बानी के जानवर की खाल अगर दावत इस्लामी को देने की नीयत रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे दूँ, कहाँ से दूँ, तो फ़ोन नंबर आपकी मदनी चैनल की स्क्रीन पर हैं, आप कॉल करके अपना एड्रेस वगैरह बता सकते हैं। इंशाल्लाह इस्लामी भाई हो सकता है इस मामले में आपकी मदद करेंगे। कुछ जानवर भी दिखा दें जो कुर्बानी के जानवर, अभी कुछ ही देर के बाद इंशाल्लाह ताला इनमें से जानवर ज़ब्ह किए जाएंगे, बल्कि अगर तैयारी हो तो बता दीजिएगा। अली रज़ा भाई, आज फिर 1 साल गुजर गया है और आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर कुर्बानी के जानवर दिखाते हुए शायद नज़र आएंगे। जानवर तो बड़े हैं जी, ये क्या शान है इनकी कि राह खुदा में कुर्बान होने के लिए इंतज़ार में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, गोया वाह, खुश नसीब है। सुभान अल्लाह। आखिरत का मामला जो इनका हमारा बड़ा फ़र्क है। कॉल्स भी चलाएं। मोहम्मद उवैस रज़ा तारी है और मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं मोहम्मद वसीफ अत्तारी, बाउल मदीना कराची से। आमिर फ़याज़ अत्तारी, कोयत से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा नाम रज़वान अहमद अत्तारी, काड़ा से। मेरी तरफ से अमीर अल सुन्नत और निगरान शुरा और मदनी चैनल के ज़रिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को बहुत 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 ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी है। मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन से अर्ज़ है कि कुर्बानी के जानवर की खाल दावत इस्लामी को दीजिए। मैं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी ओमान से बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम ईद कुर्बान बहुत अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल को तरक्कियाँ अता फरमाए। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत दीनी मालूमात मिलती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमीर अहले सुन्नत को सेहत कामिला अजला नाफ़िआ अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम की इस प्यारी उम्मत पर जब बाबा करम है कि ये हमें हर साल ईद कुर्बान की सआदत नसीब होती है। लेकिन अगर हम इसके पीछे जाते तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक पूरा वाक़िया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें अब अगर कुछ इस तरह के मदनी पुल अगर आपकी तरफ से मिल जाएं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब ये बात पता चली कि इनके वालिद साहब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ और इस तरह, तो वो जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो इस मामले में जो अपने वालिद माजिद की तरफ जो कुछ कलाम थे, इसमें एक औलाद के हवाले से क्या मदनी फूल मिलते हैं? बाप जो भी बात करे शरीयत के दायरे के अंदर अंदर हो तो मान ली जाए। अब चूंकि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम नबी थे, तो ये अंडरस्टूड है कि इन्होंने बात ही शरीयत की करनी है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए वो आपके शहजादे हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम उस वक्त सिर्फ 7 साल के थे। 13 साल की भी रिवायत है,
تو اس قلیل اور مختصر سی عمر میں تھے بڑے ذہین، کہ تھے یہ بھی نبی، تو نبی بہت ذہین ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہر صورت میں ان کی اطاعت کی ماشاءاللہ، اور بڑی سعادت مندی کا ثبوت دیا۔ تو والدین جب بھی کوئی حکم فرمائیں اور وہ حکم شریعت کے مطابق ہو تو اس پر بلا چون و چرا عمل کرنا یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج حضور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شیطانی وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مبارک انداز دیکھیں کہ شیطان آ رہا ہے اور اس طرح سے اس کے اندر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر رخنہ اندازی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ شیطان کو جو ہے وہ دور بھگایا، اس حوالے سے جو ہے آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ کنکریاں ماری گئی، جہاں جہاں آ کر اس نے روکا نا وہاں انہوں نے کنکریاں ماری، تو وہی یادگار آج بھی قائم ہے، اور حاجی جو ہیں ان پر یہ کنکریاں مارنا واجب ہے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ کنکری چھوٹی سی ہے لیکن شیطان کو وہ خدا جانے کتنی زبردست چوٹیں لگی کہ وہ ہٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اب جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ یادگار میں، تو اب شیطان کو براہ راست وہ کنکری لگتی ہے، اس کا تو کہیں پڑا نہیں ہے۔ البتہ دنیا بھی مثال یہ کہ کسی پر وہ گندا انڈا پھینکا جائے یا جوتا پھینکا جائے، جیسے بعض کا لیڈروں پر لوگ پھینکتے ہیں، طریقہ یہ بھی غلط ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے کیا تذلیل ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ تو طے ہے کہ شیطان کی تذلیل تو بہت ہوتی ہے جب کنکریاں سب مل کے مار رہے ہوتے شیطان کو، کہ وہ نفرین مطلب نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اس سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ تو بڑے جذباتی ہوتے ہیں، سنا ہے کہ وہ ہم نہیں چھوڑے گا اس کو، جوتے اور ڈبے اور جو ہاتھ میں ہم مارتے ہیں۔ خیر یہ بھی طریقہ غلط ہے، مارنا وہ کنکریاں ہیں، گالی دے تو یہ تو بہت ہی غلط کام ہے۔ تو مارنا وہی کنکری ہے کہ کھجور کا جو بیج ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی، اس گٹھلی کے برابر کنکری ہو، اللہ سبحان اللہ، بڑے پتھر سے توڑ کر بھی نہ بنائی جائے، وہ ڈائریکٹ وہ کنکری ہو، اور مزدلفہ سے وہ لی جائے۔ بہتر یہی کہ مزدلفہ کی ہو اور دھو بھی لیا جائے اس کو۔ سبحان اللہ، یہ مستحبات وغیرہ ہیں، اس کے بغیر کنکری مارنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں حضور کسی نے اپنے جذبات کا اظہار یوں بھی کیا، انہوں نے کہا ہمارا تو بس نہیں چلتا، ہم تو بلڈوزر پھیر دیں شیطان کے اوپر، کیا فرمائیں گے؟ ہاں تو ظاہر ستون جو بنایا گیا ہے تو یہ بے عینی شیطان تو نہیں ہے، ورنہ تو کبھی کا اس کو اڑا دیتے، وہ تو اس کی یادگار ہے۔ ستون کو مارتے ہیں تو وہ ایک پتھر کا ستون ہے، اسی کو مار رہے ہیں، اس کو بلڈوزر مارے یا کچھ بھی کریں، تو اس وقت کا ستون تھا، اس وقت تو جب حقیقت میں کنکریاں ماری گئی تو واقعی شیطان موجود تھا وہاں جس کو ماری گئی۔ اب وہ شیطان تو مردود تو وہاں سے دفع ہو گیا نا، کہ وہ جگہ کی یادگار ہے، تو اس جگہ پر وہ کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ آج بھی اگر وہ ستون ہٹ جاتا ہے اور اگر اسی رینج میں کنکری اگر مارتے اور گرتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہو تو جائے گی کنکری مارنا، ستون پہ لگنا شرط بھی نہیں ہے، صحیح، اس کی باقاعدہ رینج بنی، پیالے بنے ہوئے کہ اس کے اندر اگر کنکری گر گئی تب بھی وہ شمار ہوگی، لیکن یوں مارنے کا اس کا طریقہ ہے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو اس طرح مارے، یوں چٹکی میں پکڑ کے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مارے، غالباً یہی بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے میں اس میں سنتیں آداب شامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں حضور علی یہ بھی پتہ ایک مدنی پھول جو ہے وہ مل رہا ہے کہ وہ لوگ جو شیطانی وساوس کے شکار ہو جاتے ہیں، ادھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، اجی قربانی کا اتنا مہنگا جانور خریدنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا مہنگا جانور جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام، عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنک۔ جہاں چاہو
रखो बदन। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु ताला अलैहि अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में भी अर्ज़ है और हमारे मदनी चैनल के नाजरीन भी इस वक्त देख रहे होंगे कि एक यहाँ भी मुख्तसर था एक गोया के मतबख हमने तैयार किया हुआ है। ये इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद यहाँ पर हम आपको पकने के मनाजिर दिखाएंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अमीर सुन्नत भी कुछ देर के बाद यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। ये हमारे कुछ मसाले वगैरह इस वक्त पीसे जा रहे हैं। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। मसाले पीसने की आवाज़ आपको सुना रहे थे, सुनाई थी, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह इस वक्त यहाँ तैयारी शुरू है और जो ही हमारे कुर्बानी के गोश्त ऊपर आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ कुछ सेकने का भी सिलसिला होगा, पकने का भी सिलसिला होगा और इंशाअल्लाह जब पककर तैयार हो जाएगा तो खाने का भी सिलसिला होगा। लेकिन अभी ये कोयले और ये सारी खाली खाली कढ़ाइयाँ बता रही हैं कि अभी इसको वक्त लगेगा। हम कॉल चलाएं तो अब वक्त लगेगा, इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप भी इंतज़ार कीजिएगा, पकने के मनाज़िर देखिएगा। खा तो हम यहीं लेंगे इंशाअल्लाह, आपको पकता हुआ दिखा देंगे मदनी चैनल के नाज़रीन को, ठीक है। सल्लु अलल हबीब अल्लाह ताला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद के रोज़ मुलाकात के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और इस तरह इन्होंने कहा, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी कुछ इसी तरह इरशाद फरमाया कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। यानी अल्लाह ताला हमारी और आपकी नेकियां कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हदीस पाक में ये कितने खूबसूरत कलिमात हैं। उमूमन आदमी मिलता हुआ सलाम तो लेता है, लेकिन सलाम के साथ कुछ ऐसे गैर ज़रूरी कलिमात और बाज़ औक़ात तो कुछ मज़ाहिया कलिमात कहते हैं। जैसे आज के दिन है तो रमज़ान मीठी ईद होती है तो लोग मुबारकबाद देते हैं, रोज़ों की मुबारक हो और दीगर नेक अमाल। तो ये दुआया कलिमात बहुत खूबसूरत कलिमात हैं। आजकल बाबा ये कुछ लोग ईद के साथ साथ कहते हैं गोश्त भी मुबारक हो, ये क्या है? ने अगर गोश्त देते हुए कहा कि ये कुर्बानी का गोश्त मुबारक हो तो मुबारक होने इसकी आपको बरकतें मिले हैं तो दुआ ये। अगर मकसूद तज़हीक ना हो, इस्तेज़ा ना हो, हंसी उड़ाना ना हो, तो अगर सच्ची नीयत से रिज़ा इलाही के लिए दुआ देने की नीयत से देता है कोई हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन आमतौर पर होता नहीं। ऐसा फरमा रहे ना, वो आपके बच्चे हमारे गुलाम, दोज़ख हो, हराम हो, और पता नहीं क्या क्या, ना अरबी ना उर्दू ना फारसी, कोई और ही ज़बान होती है, इस तरह के अल्फाज बोल रहे होते हैं। जन्नत तो मकाम हो, दोज़ख हो, हराम हो अलग। दोज़ख तो अरबी लफ्ज़ ही नहीं है, तो फारसी का लफ्ज़ है। तो ये एडिशन नहीं करना चाहिए। जो अहादीस मुबारका में ना सलाम का तरीक़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पर इससे बढ़ाना नहीं चाहिए और अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ इसमें बढ़ाना नहीं और संजीदा अंदाज में सलाम। ये दुआ है, सलाम करना, मुलाकात की ये तहियत है, मुलाकात के वक्त सलाम करना सुन्नत है। और अब जिसको सलाम किया उस पर वाजिब है कि जवाब दे, उसका कम अज़ कम इतना ही कह ले वालेकुम, तब भी वाजिब हो जाएगा अदा। लफ्ज़ सलाम कह दिया जब भी वाजिब अदा हो जाएगा। और अगर वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इतना जवाब देगा तो 30 नेकियां मिलेंगी, मगर ये कि इसका तलफ़ुज़ दुरुस्त अदा करना होगा। आम तौर पर अस्सलामु अलैकुम कहना लोगों को आता कम है और जिनको आता है उनके पास इन कामों के लिए वक्त कम होता है। जल्दबाजी में वो अस्सलामु अलैकुम नहीं कह रहे होते, वो कुछ और कह रहे होते, सलामकुम सलामकुम सलामकुम, इस तरह के अल्फाज बोलते हैं। तौबा तौबा, नहीं, अस्सलामु अलैकुम। और वालेकुमुस्सलाम भी आइन पर ज़बर है, वाल कहेंगे, वाल माने पहाड़ी बकरा, तो है आइन पर ज़बर, वालेकुम वालेकुम। अच्छा फिर ये क्या, वालेकुम सलाम नहीं, वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह यानी कि थोड़ा यूँ इत्मीनान से सलाम किया जाए और इत्मीनान से जवाब दिया जाए, सही तलफ़ुज़ इसका अदा किया जाए कि ये हदीसों के अल्फाज हैं, बल्कि लफ्ज़ सलाम तो कुरान करीम में वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों ने सलाम अर्ज़ किया तो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने भी उसी लफ्ज़ के साथ जवाब दिया, सलाम सलाम। अगर आयत याद हो, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलामा, कि जब हमारे जो फरिश्ते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने कहा क़ालू सलामा, क़ाला सलामुन फ़मा लबिसा अन जाअ बिइज्लिल हनीस, तो जवाब में भी आपने भी इसी अल्फाज से सलाम के अल्फाज अपने अदा किए। बाज़ लोगों को देखा है वो जब किसी को सलाम करेंगे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आगे से यूँ कर देंगे या फिर आगे से यूँ कर देंगे, यानी ज़बान से जवाब नहीं देंगे, गर्दन हिला देंगे या हाथ से जो है वो जवाब दे देंगे या मुस्कुरा के दिखा देंगे। तीनों तरह से होता है मामला, क्या फरमाएंगे? ये जवाब नहीं है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। तो पूरा यानी जबकि वो सलाम करने का मौका हो तो उस वक्त जवाब उसका वाजिब होता है। यानी मुलाकात के लिए कोई हाजिर हुआ तो अब उस पर सुन्नतुल मुअक्कदा है कि वो सलाम करे, और जिसकी मुलाकात के लिए हाजिर हुआ उस पर वाजिब है कि वो सलाम का जवाब दे। तो ये वाकई सर हिला देते हैं या वो खाली मिन कर लेते हैं, वो आवाज़ से जवाब नहीं देते, दिल में जवाब देते हैं। तो जवाब इतनी आवाज़ से देना वाजिब है कि जिसने सलाम किया वो सुन ले, जबकि कोई शोर या कोई रुकावट, कोई बाजू का दिया कि स्कूटर पे भागता हुआ अस्सलाम वालेकुम का, तो ज़ाहिर है इसके पीछे तो दौड़ा तो नहीं जाएगा जवाब देने के लिए। लेकिन ये कि कोई उज़्र वाकई यानी कि सही उज़्र ना हो तो इतनी आवाज़ निकाले कि अगला इसका जवाब सुन सके। लेकिन ये बस ज़ाहिर छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अफसोस हमको मालूम नहीं है। न सलाम करना आता है, न जवाब देना आता है। सच्ची बात है कि न खाना आता है, न पीना आता है, बल्कि हमारी अक्सरियत को बिस्मिल्लाह पढ़ना भी नहीं आता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना नहीं आता। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि अक्सरियत को शायद दुरुस्त कलेमा पढ़ना भी नहीं आता। खुशफहमी बड़ी होती है कि मैंने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, पढ़ना ये आता नहीं है। जब हम लोगों के सामने पढ़ेंगे तो तकल्लुफ़ के साथ हो सकता है कि दुरुस्त अदायगी हो जाए, लेकिन जब ये अकेले पढ़ते होंगे या जब ये अपने जैसों से मिलते होते हैं ना, तो उस वक्त जिस तरह वो करते होते हैं, जैसे स्क्रीन पर ही हम देखते हैं मदनी चैनल के हमारे साइलीन जब सवाल करते हैं तो बड़ा यानी कि वो तकल्लुफ़ के साथ और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कहते हैं। एक तादाद अब ये कहती है, लेकिन हुस्न ज़न अब एक किसी शख्स मुअय्यन के बारे में नहीं कहता, लेकिन अक्सरियत के बारे में ऐसा लगता है कि ये आपस में ऐसा करते नहीं होंगे। आपस में तू जा मैं आता हूँ गाड़ी भगाते होते। अल्लाह हमें सलाम की बरकतें नसीब फरमा। ईद मुबारक। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आमीन भी सही है। वैसे ये अल्फाज सरकार ने दोहराए थे, अब वो जबान पे चढ़ेंगे नहीं जल्दी। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। सुभानअल्लाह। तक़ब्बलल्लाहु ये थोड़ा मुश्किल है, ये रटने से आएगा। सुभानअल्लाह। ये दोनों तरफ बाबा कहेंगे। सरकार ने यही जवाब इरशाद फरमाया। वाह वाह। जैसे अगर कोई जवाब ये कहे तो हमको जवाब में आमीन व इय्याकुम या हरज तो नहीं है इसमें, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज इरशाद फरमाया, अपने गुलाम की हौसला अफजाई फरमाई। तो आपके साथ कोई और भी थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई शायद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। वालेकुम अस्सलाम। मरहबा।
मिनकुम भी चल जाएगा, लेकिन हदीस के अल्फाज की बरकत अपनी है। वाहिद का है, मिन का। ये ताहिर ने मुझे भेजी थी, हवाला भी है, तखरीज भी है इसमें, माशाअल्लाह। ये हदीस पाक सलाम के ताल्लुक से सुनिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जब अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा ज़ादह अल्लाह शरफ़न व ताज़ीमा तशरीफ़ लाए तो लोग जल्दी से आपकी तरफ लपके। मैं भी आया ताकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार करूं। जब मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखते ही पहचान गया कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। सबसे पहली बात जो मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुनी वो ये है कि खाना खिलाओ और सलाम आम करो और अपने रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करो, और जब लोग सो रहे हो तो नमाज पढ़ो। सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कॉल, हमारे पास कुछ कॉल्स भी हैं और एक वीडियो सवाल भी है। अभी हम आपको एक ऐसा जानवर दिखाने वाले हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन। इससे पहले कि मैं आपको जानवर दिखाऊं, आप जहां भी हैं जल्द अज जल्द आ जाइए मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने, क्योंकि अभी एक आप ऐसा जानवर देखेंगे, जब मैं उसके करीब पहुंचूंगा तो हो सकता है कि मैं छुप जाऊं, आपको मैं नजर ना आऊं। ये मेरे कद से भी काफी ऊंचा है। ये देखें, मुलाहिजा कीजिए, माशा अल्लाह अज़्ज़वजल। ये मेरा हाथ नजर आ रहा है आपको, ये कितना ऊंचा जानवर है। शायद मैं थोड़ा सा आपको नजर आ रहा हूँ नाज़रीन, इसको कूमट कहते हैं। ये भी देखें कितना बड़ा है, और ये इतना बड़ा जानवर है माशा अल्लाह अज़्ज़वजल। आप इसको मुलाहिजा कीजिए। और इसके दांत कितने हैं, दांत आपको दिखाते हैं। जी दांत दिखाइए, कितने दांत का है ये? 6 दांत का है। इसके आप दांत भी मुलाहिजा कीजिए, बहुत ही प्यारा सही ये जानवर है। 6 दांत हैं इसके। एक सवाल ये भी है कि इसकी जो राल टपक रही है, अगर ये हमारे जिस्म से, कपड़े से टकरा जाए तो ये पाक है या नापाक है? एक तो ये भी इरशाद फरमा दें। अब हम बताते हैं इसकी मालियत कितनी मांगी जा रही है। इसकी मालियत जो बताई है मालिक ने वो है 30 लाख रुपए, और इसको देखने के लिए लोगों का जो है एक काफ़ी रश लगा हुआ है। 30 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। इसके अंदर जो गोश्त वगैरह बताया रहा है वो 40 मन, देखिए कितना बड़ा जानवर है, 40 मन, और एक मन में जो है 40 किलो होते हैं। अब आप हिसाब किताब लगा लें कि इसका वजन कितना होगा। तो बड़ा ही रश लगा हुआ है, इसको देखने के लोग आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है इस मंडी का सबसे बड़ा जानवर है, और मंडी का क्या ये भी सुनने में आया ये एशिया का सबसे बड़ा जानवर है। शायद इसके आगे हम लोग भी छोटे छोटे से लग रहे हो आपको। देखें इसका मुंह, देखें इसका जो सर है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा इसका सर है। तो इसको देखें तो माशा अल्लाह अज़्ज़वजल गई है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से ये बात मालूम करना चाहेंगे कि ये इतना महंगा जानवर है, तो बकरा ईद के दिन है, कुछ इस किस्म की बातें भी सुनने में आती हैं कि इतना महंगे जानवर की कुर्बानी क्या करें, आप ये काम कर लें, वो काम कर लें, इधर खर्च कर दें, उधर खर्च कर दें। हम महंगा जानवर ख़रीदते हैं और अल्लाह अज़्ज़वजल की राह में कुर्बान करते हैं, तो इसकी कोई फजीलत है? क्या फजीलत है? तो हमें भी बताइए, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताइए। वो एक तो ये अर्जी के मन में 40 किलो कहा गया, 40 किलो नहीं होते, 40 शेर होते हैं। ये मन और शेर ये पुराना हिसाब है, अब किलोग्राम चल रहे हैं। दूसरा ये कि इसके मुंह की राल, तो जब मुंह का जो नॉर्मल थूक होता है वो पाक होता है, और जब ये जानवर बकरी हो, गाय हो, जो भी जानवर जुगाली वाले जो जुगाली करता है, यानी पेट के अंदर से वो कुछ लाकर मुंह में चबाता है और अंदर लेता है, फिर मैदे से निकालता है, ये इसका कुछ अमल है इसका। तो ये जो पेट से इसका जो झाग आता है
یہ جو جھاگ آتا ہے نا یہ پیٹ کا ہوتا ہے، تو یہ جھاگ ناپاک ہے، اس سے اپنے ہاتھ کپڑے وغیرہ بچانا چاہیے. اور اگر جانور کے منہ سے رال گر رہی ہو، لیس بنی ہوئی ہو، ٹپکتی ہے، تو یہ جانور کے بیمار ہونے کی علامت ہے. اچھا، اب یہ کہ جانور کے دانت دکھائے گئے تو بلا ضرورت اس کے دانت دیکھے نہ جائیں، کیونکہ وہ اس کو اس طرح زخم آ سکتا ہے. یہ اگر آپ وہ زخم والا وہ مینڈے کا منہ دکھا سکتے ہیں، دانت وہ کسی نے دانت کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیا ہو، لیکن میں نے دیکھتے ہی اس کو دیکھ لیا کہ بیچارے کو بہت بڑا چھالا پڑ چکا ہے، بار بار منہ کھولتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ جو خرید کر لے جاتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں خدا کا خوف نہیں ہوتا، سوچتے نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب گڑیا نہیں ہے، کوئی مطلب یعنی کہ وہ روئی کا بھالو نہیں ہے، یہ زندہ جانور ہے. بیچارے کا منہ کھول 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 کے اس کی حالت خراب کر دیتے ہیں. اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا سکیں تو ہے ویسے آپ کے پاس وہ دیکھو، انہوں نے وہ چمکتے دانت دکھائے ہوں گے، ہو سکتا ہے جس نے بنا کر سوشل میڈیا پہ لوڈ کیا ہو. دیکھو اس کے نیچے بالکل یہ معمولی چھالا پڑ جاتا ہے انسان کے منہ میں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. مرچ والا کھا نہیں سکتا، گرم چیز کھاتا ہے، گرم چائے بھی پیتا ہے تو منہ میں جلن مچتی ہے، تو ٹیوب لگا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اس بے زبان کو کون ٹیوب لگا دے گا؟ ان کو مرہم کون لگائے گا؟ کون بیچارے کو تسلی دے گا؟ بار بار نوچتے رہتے منہ. نہیں، بلا ضرورت نہیں، تکلیف نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جانوروں پر ظلم کرنے سے بچائے. کہ جانور پر ظلم کرنا جو ہے نا، یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی سخت ہے. مسلمان پر کوئی مسلمان ظلم کرے گا تو مقابلہ کر سکتا ہے، وہ جا کر کورٹ میں کیس کر سکتا ہے. یہ بے زبان جانور کس کو فریاد کرے گا؟ اللہ کے سوا بیچارے کا کون مددگار ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ کچھ مہنگے جانور کے متعلق بھی سوال کیا تھا. یہ 30 لاکھ اس کے مانگ رہے تھے. جانور قیمتی جانور، عمدہ جانور جس کا گوشت بھی عمدہ ہو، قیمتی ہو، تو یہ افضل ہے، جبکہ واقعی اس کی قیمت بنتی ہو. تو یہ بقرعید میں حسن کی قیمت بنتی ہے. پچھلے دنوں 1-2 دن پہلے اتنا مرغے جتنا جانور دکھایا تھا، مبالغہ کرتا ہوں کہ بلی سے تھوڑا بڑا تھا، 14 انچ کا، اس کے 10 لاکھ مانگ رہا تھا. تو میں نے کہا یہ اس کے حسن کے پیسے ہیں. تو بڑا پیارا سا تھا، اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا بچے کی طرح اس جانور کو. تو حسن کے پیسے ہیں. وہ دعویٰ یہ تھا کہ قربانی کے قابل ہے، 2 دانت کا ہے، یعنی کہ 2 دانت 12 سال بھر کا ہو نا، 12 ماہ پورے ہوں، 1 دن بھی کم نہ ہو، تب قربانی اس کی جائز ہوتی ہے بکرے کی. تو یوں یہ جانور 30 مانگ رہا، ٹھیک ہے، 30 مانگے، کروڑ مانگے، اس کی مرضی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کو کوئی اس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ لٹے رہا ہے یا یہ چھین رہا ہے. نہیں، آپ کی مرضی، آپ لینا تو لے. اس نے کون سا گن پوائنٹ پر آپ کو بیچنا ہے، اور آپ نے کون سا گن پوائنٹ پر اس سے مرعوب ہو کر خریدنا ہے. سمجھ میں آتا ہے تو خریدیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں، آپ کو مطلب یہ قربانی پر خرچہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے یہ نظر آتا ہے. معذرت کے ساتھ جو شادیوں پر جو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہ اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ اس وقت کسی کو غریب یاد آیا؟ تو سوشل میڈیا پر کسی نے بڑا وہ عجیب و غریب ایک وہ بنا کر نقشہ وہ دیا تھا کہ وہ کہ ایک نے کہا، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا خوبصورت سا، بولا 95,000 روپے کا میں لایا ہوں. پھر وہ بکرا لے کر آیا، جو جس نے پوچھا تھا کتنے کا لیا،
ये 2200 का लाया हूँ। बोला क्या जुल्म करते हो, ये 2200 रुपये तुम ये बकरा काट दोगे, किसी गरीब को दे दो 2200 रुपये। तो उसने कहा तुमने जो 9500 का दिया है वो गरीब को दे दो ना, मैं तो अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करूँगा। इस मफहूम का था। इस चोट अच्छी मारी थी कि इतना कीमती मोबाइल फ़ोन लेते हैं ये, तब इनको गरीब याद नहीं आते। शादियों में खर्च करते हैं, अपने डेकोरेशन, घर का डेकोरेशन, लाख या लाखों रुपए के पलंग आते होंगे आजकल, सोफे इतने कीमती होते हैं, ये लाइटिंग और सजावटें घरों में जो ये लोग करते हैं तो लाखों लाख में। अब तो लाख तो पुरानी चीज़ होगी, अब तो करोड़ रुपए की बात चल रही है, अब तो लाख लाख रुपए तो ज़बहा की कीमत चल रही है। इनको जाके कौन समझाएगा। हाँ, एक अपना है इस्लामी भाई, वो बहुत बड़े तगड़े जानवर लिए उसने, तो उसने गोश्त फरोश को दिखाया जोड़ी, तो एक ज़बहा की यानी कटाई क्या लोगे, बोला 1,20,000 दोनों के। उन्होंने 1,20,000, हाँ पर मैं तो 70,000 दूंगा। तो वो काटने वाला 70,000 सुनकर नाराज होकर चला गया। 70,000 में उसने नागवारी का इज़हार किया, चला गया, नहीं काटने के लिए तैयार नहीं। तो बहरहाल ये कि ठीक है, उसकी मर्जी है, ये 2 लाख मांगता, आपको है अगर समझ में आता तो कटवाए हमसे, नहीं कटवाए तो कौन सा, कोई जोर जुल्म नहीं है। तो बहरहाल ये कि दुनिया के बहुत सारे खर्चे जारी हैं, तो जो अल्लाह की राह में खर्चा किया जाता है वो बहुत यानी कि अच्छा होता है। अब देखो ना, हज पर भी तो अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। काबे के खिलाफ जो साल के साल में बदलता है वो सोने की, उस पर मतलब यानी कि वो सोने का काम हुआ होता है, ये हर साल बदलता है और सारा साल उस पर काम होता है। तो कितने कारीगर उस पर उजरत से काम कर रहे होते हैं, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ 22 रियाल, 2 करोड़ 22 रियाल, 2 करोड़ 22, 2.25 करोड़, तकरीबन 2.25 करोड़ रियाल उस पर खर्च आता है, ये बताया जा रहा है। अब इसके आप पाकिस्तानी रकम करें तो गश लग जाएगा। 1 रियाल कोई 29-30 रुपए का तो होगा पाकिस्तानी, 65-70 है, तकरीबन यानी कि 70-72 करोड़ रुपए गिलाफ पर लग जाते हैं काबे के। फिर मजीद वहाँ अखराजात होते हैं वो अलग, इसकी देखभाल करने वालों की भी तो कुछ जो खिदमत करते हैं, इसके ज़रिए अपने दिल की सफाई जो करते होंगे वो भी तो कुछ पैसे लेते होंगे। उस पर भी सुना है कि एक अमला होता है पूरा जो इसकी देखभाल करता है, पूरी फैक्ट्री टाइप की बनी हुई है, इसमें पूरा काम हो रहा था। बाद में लग जाने के बाद भी सुना है कि इस पर देखभाल के भी मखसूस इसके होते हैं अफराद, इसकी देखभाल करते हैं। और वैश्यों के ज़रिए भी लाखों का पेट पल रहा है, सारा साल पालने वाले इसको पालते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, खिदमत करते हैं, फिर इसको बेचते हैं, तो इनकी भी रोज़ी रोटी इस पर लगी हुई है। फिर इसके ज़रिए वो लोग भी गोश्त खा लेते हैं जो सारा साल बेचारे गरीब गुर्बत की वजह से नहीं खा सकते या कम खा सकते हैं। एक इस्लामी भाई मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ एक इस्लामी भाई है, उसकी इतनी सैलरी कुछ बताई थी मुझे, मुख्तसर सी सैलरी है, वो बेचारे मतलब गोश्त खा ही नहीं सकते, वो बकरीद में बस गोश्त इनको मिलता है, ये लोग खाते हैं बकरीद में, ऐसे गरीब है। तो ऐसे न जाने कितनों को गोश्त मिल जाता है। फिर फिरावानी के साथ वो दिल भर के बंदा गोश्त बकरीद में खा सकता है, आम दिनों में इस सब के लिए ऐसा नहीं होता। फिर इसकी खालों के ज़रिए कितना ज़र मुबादला हमारे मुल्क को मिलता है। फिर इसकी खालों के ज़रिए जो चीज़ें बनती हैं, खाली जूते ही नहीं बनते, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो इनकी खालें उम्दा होती हैं। आम दिनों में जो जानवर कटता है उनकी खालें इतनी उम्दा नहीं होती, वो मतलब वो दूसरी तरह के होते हैं। और ये पले बड़े हुए और बादाम पिस्ते खाए हुए जानवर भी इन दिनों कटते हैं, तो इनकी बेहतरीन खालें होती हैं। तो सारी दुनिया में वो भी लोगों को काम आती हैं खालें, तो बहुत सारी। तो ये लाखों करोड़ों लोग इस कुर्बानी के जानवरों और ईद कुर्बान के सदक़े में मतलब अपना पेट भरते हैं। अब हमें भी थोड़ा पेट भरने के लिए यहाँ पकाना है ना, और पकाने के लिए थोड़ा आपको वहाँ लेके जाना है।
मैंने वहाँ आना है। आपने वहाँ आना है, तो थोड़ा हम तब्दीली चाह रहे हैं, अगर हाजरीन भी हमें ताउन फरमाएं और अमीर सुन्नत वहाँ तक अभी तशरीफ़ ले जा रहे हैं। एक और सम्त में आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पर इंशाल्लाह कुछ हमने अभी तो गोश्त ने कुछ चीज़ें आई हैं, वो क्या हैं कैसी हैं, कुछ इसकी पहचान भी हमने शुरू करवानी है, अगर आप करम फरमा दें। मेरे ये हाजरीन जो है ये साथ साथ चल रहे हैं, आपको अब हम वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पर हमने अमीर सुन्नत से ये रहनुमाई लेनी है कि कौन कौन सी शे किस किस तरह अभी हमने बनानी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक हो। पापा ये अभी तो आसरा है सामने सामने, अभी कच्चा कच्चा। अब इसके हवाले से कुछ मैं चाह रहा था कि रहनुमाई फरमाएं कि अभी हमें सेकनी है चीज़ें, कुछ तलनी है, तो पहले तो निशानदेही हो जाए कौन सी शे क्या है। ये थाल भी ज़रा करीब कर दें। इसमें पापा कलेजी किसे कहेंगे, गुर्दा किसे कहेंगे, फेफड़ा किसे कहेंगे? ये उठाते हैं आप बोटी, तो मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, ये फेफड़ा है, फेफड़े की बोटी है। ये भी खाई जाएगी? ये फेफड़ा खाया जाएगा जब। तो ये कलेजी है। कलेजी तो तकरीबन लोग समझते हैं। ये दिल की बोटी है, ये नुमाया है दिल की बोटी, ये भी नुमाया है। हाँ, ये दिल की बोटी है। थोड़ा रखा करो तो कैमरा ले ले ये उस तरफ से नुमाया हिस्सा। ये तिल्ली की बोटी है। ये भी खाई जाएगी बाबा? जी हाँ। चलें, तिल्ली की बोटी भी रखें। ये पाइप, ये फेफड़े का, ये सांस की नली है। ये बाद लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये भी खाई जाती है। गल जाती है बाबा इतनी जल्दी? है गलने को तो गली जाती है, जल्दी लफ्ज वापस ले लें आप, गल जाती है। मैं ये कह रहा, गलने को गल जाती है? टाइम लेगी, गल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, गल जाएगी। मजीद कसर पेट में पूरी हो जाएगी, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा कच्चा पक्का ही लोग चला रहे होते हैं, तो चूरन भी साथ में रखते हैं। लाए चूरन? चूरन नहीं लाए? अच्छा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो इसको धो लिया जाए। वैसे मशहूर ये है, ये पकाने वालों की लॉजिक है कि बगैर धुले इसको पकाना चाहिए। धोएंगे तो टेस्ट चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसको धो लेने से खून लगता रहता है इन पर भी। अच्छी तरह धो धा के जिस तरह पाक करते ना, इस तरह धो लेना अनसब ज़्यादा मुनासिब। कि जब तक यानी कि हमको यकीनी मालूम ना हो कि इस पर ज़बाह के वक्त निकला हुआ खून लग गया या गोबर लग गया, उस वक्त हम इसको नापाक नहीं कहेंगे। कि दिल के अंदर जो खून निकलता है वो पाक होता है, कलेजी के अंदर से भी खून निकलता है वो भी पाक होता है। लेकिन ये खून पाक है, इसका मतलब हर पाक चीज़ खाई तो नहीं जाती। दे दीजिएगा। कबूतर की बीट भी पाक होती है, तो इसको कोई खाएगा तो नहीं ना खाने की इजाज़त शरीयत में। तो इसको धो लेना चाहिए। नियत भी कर लेता हूँ कि किबला रुख बैठना सुन्नत है। अब आप मदीपुर अता फरमाते हैं मदीजे के नाज़रीन को। अब थोड़ा शुरू रखें। इसी तरह जो गोश्त है उसको भी धोकर पकाना चाहिए। ये जो बाजार में जो कढ़ाई गोश्त होटलों में शौक से खाते हैं ना, उनकी बस ये लॉजिक है कि धोए बगैर पकाना चाहिए। तो कढ़ाई गोश्त बगैर धुले पकता है। हालांकि वो मेंगनियाँ भी होती हैं ज़रा बकरे में, तो फिर खून भी आमतौर पर लग ही जाता है बवक्त ज़बाह जो निकलता है, तो ये धोते नहीं है यार। अच्छा, इसी तरह ये कबाब समोसे वाले जो कीमा बनाते हैं, तो कीमा भी बगैर धुले इस्तेमाल किया जाता है कि ये टेस्ट ज़्यादा देता है। तो कीमा भी धो लेना चाहिए, बल्कि कीमे के साथ लहसुन अदरक वगैरह पीस भी लेते हैं। तो ये तो फिर धोने का यहाँ तस्वुर ही जाता रहा कि धुलेगा तो ये सारा मसाला ज़ाया हो जाएगा। तो ये गलत है। पहले गोश्त
अच्छी तरह धो लें। अच्छा, अब अगर मशीन पाक साफ है तो ठीक है, अब इसमें लहसुन अदरक जो भी मिक्स करना है और उसके साथ इसको पीसना है। अब धोने की ज़रूरत नहीं है, वो गोश्त धुल चुका है। बाज़ लोग कहते हैं फिफड़ा भी कोई खाने की चीज़ है, ये क्या करना है खा के, और बाज़ का ये भी ज़हन होता है कि ये तो बस नहर में फेंक के आ जाओ, चलो बलाएँ टल जाएंगी, चीलें खा जाएंगी, हमारी बलाएँ जो हैं उतर जाएंगी इससे। ये लोगों के अपने अपने वो इख्तिराआत हैं, मन गलत बातें। तो फेफड़ा अगर ज़ाहिर नहर में बहा देंगे तो ये तो एक माल ज़ाया करना हुआ। आप आम दिनों में फेफड़ा ज़रा लेने तो जाए, आपको पता चल जाएगा 25 रुपए से 20-25 रुपए का मिलता होगा, ज़्यादा का मिलता फेफड़ा 80 रुपए किलो। तो अब ये बताइए कि बकरीद में भी तो इसकी कीमत तो बाकी है ना, तो ये खा लेना चाहिए या किसी को खिला देना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए। ये दरिया में फेंक देते हैं इसलिए ये तो चीलें खा जाएंगी, बलाएं उड़ जाएंगी। दरिया में जो चीलें होती है दरिया में, नहीं चीलें वहाँ वो उड़ रही होती हैं जी, यूं नहीं, मगर आपने नहर में डाला तो उसने मारना है डूबिंग, वो डाई मारनी है। चीलें भी जी बड़ी ट्रेंड होती हैं, यूं वो बंदा पकड़ के बोटी फेंकने लगता है, वो यूं करके आती है और आपने जो फरमाया उस पर कायम रहेंगे। चीलों को मेरे लाल यूं लुटाते, यूं खिलाते। मेरी जो ज़हन में था वो था पुल के ऊपर खड़े होके वो नीचे फेंकते हैं, तो वो चीलें इस तरह से वो तरकीब बना लेती हैं, पर जैसे आप फरमा रहे हैं। आपने देखा है? जी हुजूर देखा है। अच्छा, चीलें यूं ले जाती हैं? जी यूं। ये यहाँ बाबुल मदीना में बड़ा मशहूर एक पुल है और उसके नीचे समंदर का पानी भी आता है, तो नेटी जेटी का पुल, हाँ जी। तो वहाँ पर लोग जो है वो बेच भी रहे होते हैं, तो ये मुशाहदा है। यूं बंदा जब पकड़ता है ना तो गोया यूं समझ ले कि चीलें जो है वो जो उड़ रही होती हैं वो गोया रेडी हो रही होती हैं, और यूं इसने नीचे फेंका और यूं मतलब उसको बड़े समुद्र के पानी पर पहुंचने से पहले ही हो सकता है जी, उठा लेते हैं उसको। किस्मत में आ गई बोटी तो ठीक है। बापा बसा औकात ये भी होता है कि दुकान से जब खरीद कर बढ़ते हैं ना आगे, तो चीलें उस वक्त भी हमला करके हाथों से थैली से मतलब नोच कर छीन कर ले जाती हैं। ये वो ना चाहते हुए ले जाती हैं, नहीं वो डाकू का रोल अदा करती है। तो इसीलिए वो चील को तो मारना जो है वो जायज़ है। ये चील फासिक जानवर है और ये इस तरह लूटमार करती है। ये नजरिया कि ये चीलें हमारी बलाएं, इससे हमारी बलाएं जो वो उड़ जाएंगी, नहीं, हम मुसलमानों का नजरिया ऐसा नहीं है। सही। ये एक और कौम है जो चीलों को लुटाती है, ये हुनूद लुटाते हैं। ये उनका अंदाज है जो बदकिस्मती से मुसलमानों में आ गया है। आप किसी इंसान के पेट में डालो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जो परिंदे हलाल परिंदे उनको खिलाना ये भी सवाब का काम है। सुभान अल्लाह। जैसे दाने खिलाते हैं लोग कबूतरों को जी, तो ये भी जायज़ है और सवाब का काम है। ये काम की चीज़ है भाई। ये बोटी है, चर्बी है, और इसके साथ जो लगी ये लाल जो है ये गोश्त बोटी है, एक तरह की बोटी है। ये गोश्त भी नहीं है, ये वो एक हिस्सा है दिल का जो खाया जाता है। वाह। अब देल वो तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि आज तो कच्चा पक्का ही लोग तो शायद खाएंगे, तो थोड़ा चूल्हा गलाएगा, थोड़ा पेट गलाएगा इसको। आप बड़ी तवज्जो से काटे हैं, वही किसान हो कि भाई रिटायर हो जाए उंगली पर। आप हैं, नजर पड़ रही है इंशाल्लाह क्या रिटायर इस वक्त कंफ्यूज होंगे ना, इतने सारे मौलाना में घेरा हुआ है, तो ये फिसल सकती है छुरी। तिल्ली के बारे में भी कुछ लोग तनफीर का रखते हैं, एक खाने वाली शय है, छड्डो पर दफा करो, छड्डो पर, यानी ये को खाने की चीज़ फेंको, इसको दफा करो भाई। हदीस पाक में कि 2 मुर्दे और 2 खून हमारे लिए हलाल है जी। 2 मुर्दे मछली और टिड्डी, 2 खून तिल्ली और कलेजी, ये हदीस में सराहत है कि ये हलाल है। अब इसको नऊज़ुबिल्लाह को हराम कहता है तो उसकी जुरत है। नऊज़ुबिल्लाह, हम 80 मनन वाले सोचने वाले नहीं। हमारे आका ने फरमा दिया लब्बैक लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह, लब्बैक, हम हाजिर हैं। आका जो फरमाए हमारी अक्ल में आए या ना आए,
अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अमीर अहलुस्सुन्नत से अर्ज़ है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की कॉल्स हैं, कुछ मुबारकबाद भी है, कुछ ईद की नमाज़ छूटने के ताल्लुक से भी है। हम चंद कॉल्स भी चला रहे हैं। जी लब्बैक। मोहम्मद शहजाद अत्तारी सियाकोट, मोहम्मद सलीम रज़ा अत्तारी मुस्तफ़ाबाद रहमत से, मोहम्मद तैयब जमील अत्तारी मौज, मोहम्मद बिलाल अत्तारी बाबुल मदीना कराची से, मैं सारा अत्तारिया हिंद अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मैं हिंद के शहर अहमदाबाद से राबिया अत्तारिया बोल रही हूँ। प्यारे बाबा जान, आपको और निगरान सुरा को और तमाम मजलिसों को खूब खूब ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्ताफ भाई, कोई लकड़ी की मुट्ठी जिसको वो नहीं है अपने पास। ये 2-3 बार देखा, ये छुरी यूँ टर्न करती है आपके हाथ की तरफ, तो ये फिसलती है। नहीं, खुदा ना खाता अगर उंगली कटी तो आप आजमाइश पा देंगे। इस पे काटा नहीं जाता, ना ये काटने की होती है। छुरी की धार भी खराब होगी, प्लेट पर भी वो टक लगेंगे इसके, और आपकी उंगली सबसे ज़्यादा रिस्की है। ये सब इंतज़ाम करना चाहिए। तो काट ही रहे हम, अल्लाह ताला बेहतर कर। कोई लकड़ी का तख्ता मिल जाना शायद, ये लोहा। अमीर अहलुस्सुन्नत से अर्ज़ है, जिस तरह ये काट रहे हैं इस तरह नहीं काटे, लकड़ी वगैरह पर काटे। आपका ये मदनी फूल है। हाँ, मतलब रिस्की है इसलिए बोल रहा हूँ। कभी होता है एक आध बार भी अगर फिसली और लग गई ना तो आपका मजा किरकिरा हो जाए। हाँ, इस पे चल जाए, लेकिन अब सारा। और इस वक्त जो गैदरिंग है ना, ये भी जरा कंफ्यूजन का बाइस होती है। फिर वो कैमरा लगा हुआ है तो आदमी जरा यूं चारों तरफ तवज्जो होती है, और फिर वो अल्लाह ना करे हाथ कट गया तो तकलीफ हो। और अंडरस्टूड है कि इनका ये रोज का काम नहीं है। हाँ, गत्ते पे भी फर्क पड़ जाएगा। माशाअल्लाह। मजीद कॉल्स। मेरा नाम बशीर अहमद है जी, मैं बिहाड़ी के रहने वाला हूँ। मेरा बाबा की बारगाह में सवाल है कि ईद की नमाज पढ़ सके। बंदा बीमार है, उसने ईद की नमाज नहीं पढ़ी, और कुर्बानी क्या उसके नाम हो सकती है? ईद की नमाज का ताल्लुक जो है वो इतनी हद तक है कि ईद की नमाज हो जाए तो कुर्बानी जायज़ है। तो अब ये तो औरत पर तो ईद की नमाज है ही नहीं, तो कुर्बानी उस पर भी शराइत पाइयाँ तो वाजिब होती है। सुभान अल्लाह। और देहात में तो सुबह सादिक जब हो जाए तो अब कुर्बानी का वक्त शुरू हो गया। ईद के दिन वहाँ ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाती, वहाँ कुर्बानी हो सकती है सुबह सादिक से। तो ईद की नमाज का ताल्लुक सिर्फ इतना है कि ईद की नमाज पूरे शहर में एक जगह हो गई, एक तरफ सलाम फिर गया और किसी ने छुरी चला दी जानवर पर, कुर्बानी हो गई। खुतबा सुनना शर्त नहीं है? खुतबा सुनना जरूरी है, लेकिन कुर्बानी के लिए शर्त नहीं है खुतबा। ठीक है। अमीर अहलुस्सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि ईद वाले दिन जो कुर्बानी के लिए हम कसाई बुक करते हैं तो वो 7-8 हज़ार रुपया मांगते हैं एक जानवर ज़बह करने का, और ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन अगर हम उनसे कुर्बानी करवाएं तो वो कम से कम इससे आधी कीमत में भी कर देते हैं। पैसे बचाने की नीयत से ईद के दूसरे और तीसरे दिन कुर्बानी करना कैसा, इसमें सवाब में क्या फ़र्क पड़ेगा? हदीस पाक में ये मज़मून मौजूद है कि ईद यानी कि 10 ज़ुल्हिज्जतिल हराम में जब कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलती है तो उसका पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से कब्ल वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। तो ईद के दिन कुर्बानी अफजल तरीन अमल है। तो अगर ज़्यादा रकम देकर हम ईद के दिन कुर्बानी करेंगे तो सवाब भी तो ज़्यादा ले रहे हैं ना। सुभान अल्लाह। तो दूसरे दिन करेंगे तो ये कि सवाब में कमी आ जाएगी, पैसे भले बच जाएंगे आपके, लेकिन सवाब में सीधी सीधी कमी आ जाएगी। तो जैसे कि ईद के दिन 100 रुपया हो कुर्बानी का, कुर्बानी करने का, और दूसरे दिन 1 रुपया हो, 99 रुपये का फ़र्क हो, तब भी चूँकि नफ्स पर ये ज़्यादा गिरा है और है कुर्बानी, तो नफ्स की
चाहत की कुर्बानी देकर 100 रुपए में जो ईद के दिन करवाएगा ना, सवाब ज्यादा पाएगा। सुभान अल्लाह। अंडरस्टूड है। सवाब तो हज पर जो लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो दुआ तो घर बैठे भी तो हो सकती है ना, नमाजें घर बैठे भी तो पढ़ सकते हैं ना, लेकिन हज का अपना एक सवाब है, और जिस पर फर्ज है तो जाना ही है उसको। तो हदीस पाक है, अफदलुल आमाली अहमजुहा, अफजल तरीन अमल वो है जिसमें जहमत ज़्यादा हो। तो ज़ाहिर ईद के दिन तो पैसे देने में ज़्यादा जहमत होती है नफ्स को, और सवाब भी ज़्यादा है। तो पैसे बचाने के लिए दूसरे दिन करना जो है, ये अपने सवाब में कमी लाना है। जायज़ तो है, लेकिन सवाब में कमी आएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की बारगाह में सवाल है कि अगर किसी शख्स के यहाँ ईद के दिन इंतकाल हो जाए तो क्या वो कुर्बानी को मौकूफ़ कर सकता है या फिर बिला झिझक वो अपनी कुर्बानी कर ले? बिला झिझक उसको कुर्बानी करनी है, बल्कि अगर कुर्बानी वाजिब थी किसी पर, घर के फर्द पर जैसे, तो वो तो उस पर बदस्तूर वाजिब है, कुर्बानी करे उसको। गोश्त भी उसका खाया जा सकता है, पकाया जा सकता है। ये भी शायद मशहूर है कि घर में चूल्हा नहीं जला सकते वो मैयत वाले घर में, तो ऐसा भी नहीं है, चूल्हा भी जला सकते हैं। अब फाका करना भी कोई ज़रूरी नहीं है, फाका भी ना करे। बेशक जिसके यहाँ मैयत हो गई उसको खाना खाने की भी इजाज़त है, बल्कि पड़ोसियों को एक दिन के लिए ये सुन्नत है कि वो अहले मैयत को खाना खिलाएं। वो गम होता है तो थोड़ा खाने में और दिल नहीं करता, तो उनको इसरार के साथ पड़ोसियों को चाहिए खाना खिलाएं। तो ये सिर्फ पड़ोसियों के लिए सुन्नत है। रिश्तेदारों दूर से खाना लाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। पड़ोसियों के लिए सुन्नत है कि वो इसको एक दिन के लिए खाना पेश करें और खिलाएं इसको। मेहमान जमा होते हैं उनके लिए नहीं है सुन्नत। मैयत के जो घर वाले हैं ना, सिर्फ ये उनको खिलाने की सुन्नत है। आजकल तो बड़े मेले लगते हैं और दावतों का समा बाज़ात बन जाता है, और लोग तदफीन से फारिग होकर आते हैं, तो देगे भी तैयार होकर आती हैं, और ऐलान भी होता है कि वो सब खाना खाएं। हमारे यहाँ तो ये ऐलान होता है, चाहे वो दिन दिहाड़े हो और रमज़ान शरीफ ना हो, तब भी ऐलान होता है कि रोज़ा खोल के जाना। ये ज़बरदस्ती का रोज़ा है, कोई रोज़ा नहीं है इसमें। ये बहुत सारी बातें लोगों ने अपने ऊपर वो बस मुसल्लत कर ली है। नमाज जनाजा के बाद भी ऐलान होता है कि मेहमान रोटी खा के जाया जी, जो मेहमान है जी वो रोटी खा के जाएं। और फिर कड़वी रोटी बोलते हैं जी, कड़वी रोटी, बाद लोग कड़वी रोटी बोलते हैं। हमने अपने यहाँ अपनी बिरादरियों में देखा है कि रोज़ा खोल के जाना, इस तरह का भी देखा है। तो ये इसकी हाजत नहीं है, ये तो गलत तरीका है। और खिलाना है तो सिर्फ मसाकीन को खिलाया जाए, गुरबा को खिलाया जाए। ये सब लोग खाते हैं, गरीब अमीर, गरीबों को तो पता नहीं घुसले भी देते होंगे नहीं, तो खाते हैं सब मिल के। तो ये तरीका गलत है। वैसा सवाब करें मैयत को, जितना कर सकते हैं उसका उसमें फ़ायदा है। मेरे अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि इस मौजू पे अगरचे आपने चंद बार पहले भी मदनी फूल अता फरमाए हैं, लेकिन हो सकता है इस वक्त मदनी चैनल के नाज़रीन में से कुछ तादाद हो कि जिनके घर फोतगी हुई और उनकी ये वाली बकर ईद घर में पहली बकर ईद हो फोतगी के बाद, तो बाकायदा रिश्तेदार जमा हो के गम वाला माहौल पैदा करते हैं, नए कपड़े नहीं पहने जाते। जिस तरह अभी साहिल ने कहा कि अगर फोतगी होगी तो कुर्बानी मौकूफ़ कर दे, तो यूँ इस तरह के कई ऐसी सूरतें गम पैदा करने की जाती हैं। इस हवाले से भी रहनुमा इरशाद फरमा दीजिए। हाँ, अगर जिसकी जैसे पहली ईद है तो वो बेशक ईद मना सकता है, मनाना चाहिए, उसको मुस्तहब बात है, उस पर अमल करे। और खुशी का इजहार करना ये भी सुन्नत है ईद के रोज़। तो हाँ, अलबत्ता अब किसी की मैयत हो गई है और अब ज़ाहिर है कि वो बेचारा है गमज़दा, खुशी का इजहार नहीं कर पा रहा, तो कोई हर्ज नहीं है, पर कसदन ऐसा ना करे। और अगर वो ईद के दिन साफ सुथरे कपड़े पहने और ईद की नमाज भी उस पर वाजिब रहेगी, ईद की नमाज भी पढ़े। और अगर अपने गम को दबाकर वो अगर मुबारकबाद भी देता ईद का, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ईद की मुबारकबाद भी दे, खुशी का इजहार कर सकता है। बल्कि खुशी का इजहार ये सुन्नत है ईद के दिन। गम अपनी जगह पर है,
वो दिल में है तो ठीक है, इस पे बंदा बेबस है। लेकिन पहली जो 3 दिन के बाद, बल्कि कई माह के बाद जो पहली ईद आती है, फिर गम का माहौल बनाते हैं बास जगह पर। ये तो बिल्कुल नाजायज़ है कि 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं है। सिर्फ सोग उसके लिए कि जिसका शोहर फोत हो जाए, वो 4 माह 10 दिन बीवी सोग करेगी। लोग बोलेंगे इन्होंने तो शुक्र किया, मर गया, जान छूट गई। यानी लोग बोलेंगे अभी इन्होंने तो शुक्र किया, मर गया, जान छूट गई है, अब देखो कैसे अपने मामलात जो है वो कर रहे हैं। लोगों का ये कहना भी ज़्यादती है, हुक्म शरीयत पर अमल करना चाहिए। अच्छा, ये नीचे पापा जानवर ज़बह करने, मेरा ख्याल है अगर आपकी स्क्रीन के सामने आप होंगे तो बेहतर रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चर्बी है कि नहीं? गुदूद नहीं है ना? गुदूद ला मौजूद। ये दिखाएं, करीब से दिखाएं। ये क्या चीज़? वो छिछड़ा लगा। ये है चर्बी, ये खाया जाएगा। ये क्या है? चर्बी है ना, खाई जाएगी। इसको ये यूं करें, फाड़ें तो क्या निकलेगा? कोई ये आर पार है। हाँ, ये चर्बी है। दूध भी होता है इसके। हाँ, तो दूध निकाल कर चर्बी खाई जाएगी। फिर वरना वही इसराफ के मसाइल, जितना गदूद का हिस्सा है ना वो निकाल लिया जाए। अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि इसमें गदूद भी है, ये थोड़ा दिखाएं अमीर सुन्नत जो फरमा रहे हैं। चर्बी है, खाल जो है ना चर्बी है सर, वो जर्रे का हिसाब है। आजकल तो कुर्बानी के दिनों में तो बेतहाशा लोग गोश्त जाया कर रहे होते हैं। अमीर सुन्नत से अर्ज़ है, ये अब हमें ये मुयस्सर आया है वो मंजर। जी। इसमें हमें ये बता दीजिए कि क्या चीज़ हमने इसमें से दूर करनी है कि जो गदूद आप फरमा रहे हैं, और बाकी क्या चीज़ है जो बाकी कर इस्तेमाल करनी है। इस्लाम भाई के हाथ में वो बताते रहेंगे, आप इनको कुछ। ये लटक रही है, ये चर्बी है, ये खाई जाएगी। जज़ाकल्लाह। और इसमें गदूद माशाअल्लाह, हाँ ये गदूद है। अब मजीद इसमें थोड़ी बहुत चर्बी है, जितना निकल सकते निकालनी चाहिए, बाकी गदूद फेंक दिया जाए। ये आपने गदूद क्यों अलग करवा लिया? ये थोड़ी चर्बी है, गदूद खाना जायज़ नहीं है। गदूद मकरूह तहरीमी है, यानी मकरूह तहरीमी नाजायज़ और गुनाह होता है। ये गदूद है और ये चर्बी है। अब ये थोड़ी सी चर्बी रह गई, अब क्या करें इसका? ये इतना तो, ये तो खैर ये अभी तकल्लुफात हो रहे हैं, बाकी घरों में जो कुछ होता है। साद माशाअल्लाह, ये भी, इसमें भी ये खाने की चीज़ है। ये चर्बी है सारी, गदूद नहीं है ना? ये गदूद है। ये गदूद हमें गदूद को थोड़ा अलग करके दिखाएं। जी। ये गदूद असल वो महसूस शायद कम होंगे, चर्बी में ढके हुए। इनमें जो भी गदूद हो निकाल कर, बाकी ये है खाने की चीज़ें। पक जाएंगी तो खा जाएंगे, नहीं खा जाएंगे चबा के। दस्तरखान भी तो बिछा हुआ ही होता है। जी दिखाएं, मदनी चैनल के नाज़रीन को गदूद दिखाएं। ये मदनी चैनल के नाज़रीन आपको ये स्क्रीन पर दिखाएगा। ये आप उंगली के इशारे से बता दीजिए ये गदूद है। हाँ ये गदूद है जी। अमीर अहले सुन्नत ने इसका हुक्म बयान किया है, ये हम नहीं खाएंगे, और बाकी चीज़ें जो इस्तेमाल होनी थी उसकी आपने तरगीब दिला दी है कि वो चर्बी का, ये चर्बी है, ये गदूद है। ये गदूद नहीं है, ये बोटी है। ये पकेगा कब? ये गदूद अभी सब वाज़े नहीं हो रहे, थोड़ा थोड़ा इसमें छिछड़ा लिपटा हुआ है। वाज़े गदूद भी होते हैं, ये नहीं खाया जाएगा। ये जो पीला पीला है ना, ये कंधे तक खिंचा हुआ होता है पट्टा, इसको भी हाँ मना ही खाना। ये थोड़ा हमें दिखाएं भाई, ये अमीर सुन्नत क्या फरमा रहे हैं? अब ये है पट्टा या कुछ और? उस
कंधे की तरफ जो खींचा हुआ होता है, हाँ उसी का टुकड़ा ही है, पट्ठे का। तो पट्ठा खाना भी मना है। अगर खाने में पक जाए तो जी निकाल दिया जाए उसको। ठीक है। ये हाँ ये नरम हड्डी है, इसको चबनी हड्डी भी बोलते हैं, ये खाना जायज़ है। ये दस्ती के मुर्कनी हड्डी भी बोलते हैं जी, मुर्कनी हड्डी, सुभान अल्लाह। मुर्कनी हड्डी, चबनी हड्डी, हमारी मेमनी ज़बान में इसको कूणी हड्डी, कूणू हड्डो। वाह। ये प्लास्टिक की तरह, जैसे समझाने के लिए इसका प्लास्टिक की तरह होता है, ये चबा कर खाएं बड़ा मज़ेदार होता है, यानी मेरे को मज़ा आता है। अब सबको मज़ेदार लगे या ना लगे। इसको कीमे के साथ भी अगर वो बुगदे के साथ कर लिया ना, कीमे के साथ टुकड़ियाँ इसकी, और वो उसका जो सांस की नली है उसकी भी अगर टुकड़ियाँ मिक्स हो ना कीमे के साथ बारीक करके, तो कीमे का जायका बेहतरीन हो जाएगा। ये बोंग की बोटी है, ये नस खाई जाती है, ये पट्ठा होता है शायद, नरोठा। तो ये खा जाता है पककर, ये बिल्कुल पीला पीला हो जाता है पाए की तरह। यानी ये बोटी खाई जाएगी या? जी हाँ, ये सब खाया जाएगा, इसमें कोई फेंकने वाली चीज़ नहीं है, और इनमें गदूद भी गालिबन नहीं होते उसमें, बोंग में। बोंग की बोटी है ये। मसाले वगैरह दिखाएं, ये भी मसाले भी बनाए हमारे इस्लाम भाई ने, उन्होंने पपीता भी ला कर यहाँ रखा हुआ है गलाने के लिए।